Welcome children. Now let's move ahead in our chapter 4th of social studies we had started with the literary heritage of our country, and I had given a very short homework, शायद 1 minute का homework था, not even that much, and that was to find out what's the meaning of allegory. But up till now I had received only 4 to 5 answers, and let me name those my very disciplined children. That was Vimal, roll number 31, then Krishna, then there is Vivan, roll number 66 I think so, and one more child, sorry that I am not getting at present those other 2-3 names, but these few 5 to 6 children very instantly they provided me the answer to this particular question. Yes, one more, Nandan. Yes, he also gave me the answer related to what do you mean by allegory. It means that out of that huge lot of 10 standard student, 0.1% student they heard or they were listening to the lecture, this video lecture, and from this at least I can make out that only 0.1%, not even 0.1% students are on their toes, who are following the lectures, who are listening to it, and they are even doing the smallest of the homework given to them, and that was just to find out the meaning of allegories. So it's okay, it's up to you whether to be with the flow or just be at the back and last bencher की तरह बैठ के कहानियाँ सुनते रहो, सुना नहीं सुना, it's all up to you. And last moment running in the race is not going to, you're not going to achieve anything, of course. Now this is not from the point of view of your 10th standard that I am telling you, it's from the point of view of your life ahead. क्योंकि जिंदा तो रहोगे लंबा, काम करना होगा, लंबी पढ़ाई करनी होगी बहुत सालों की, and then pick up some job, profession, business, कुछ तो करोगे of course. You are not just going to be the black sheep of the family. इसका मतलब ना समझ में आए तो यू कैन सर्च इट आउट, राइट? ये ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए. एंड स्टिल इफ यू डोंट गेट देन गिव मी अ कॉल, आई गिव यू द मीनिंग ऑफ ब्लैक शेप ऑफ द फैमिली. तो आई नो नन ऑफ माई स्टूडेंट ये बनना चाहेगा, बट लास्ट मोमेंट रेस में हिस्सा लेने से और दौड़ने से नथिंग यू आर गोइंग टू अचीव इन योर फ्यूचर लाइफ ऑल्सो. This was just a small example that I am giving you, just a very small example. Hardly fraction of a minute का एक homework भी नहीं हो पाया, तो I know that is going to be very difficult for my dear children to be on time to give your test papers. Once again, yes, Wednesday की test के papers का result हम Monday तक जो दे रहे हैं आपको, it means I wait and watch for 3 days, Thursday, Friday, Saturday, indeed 4 days. तब भी very many students have not provided their question paper. So once again don't expect कि तुम पेपर 4 दिन के बाद दो, कहीं पे मंडे ट्यूसडे फिर नेक्स्ट टेस्ट आ जाएगी, तब भी इनफ्लो रहता है वो प्रीवियस यूटी का. डोंट एक्सपेक्ट दैट वी चेक एंड गिव यू ऑन टाइम, राइट? यू आर ऑलरेडी लेट, जबकि हम आ गए नेक्स्ट वीक के फ्लो में पेपर के चेक करने के लिए. So don't expect too much if you are not in discipline, but yes, expect everything if you are in discipline. तुमने अगर 3 दिन के अंदर संडे के पहले अगर पेपर हमें भेज दिया है, टेस्ट पेपर, and if we send you a message that we have not received your paper, then yes, it's your right, you give us a call, right? तो कई बार ऐसे हो जाता है that we don't receive your papers, though you might have sent it. कई बार बच्चों ने वो भेजा है श्री इंस्टीट्यूट पे, shriinstitute@gmail.com, जबकि टेस्ट पेपर भेजना है 10 एग्जाम पेपर्स @gmail.com पे. सो डियर प्लीज लिसन and see
Don't hear and look. Look is बैठे हो स्मार्टफोन लेके, लेक्चर चल रहा है, यू नो, ब्लैक एंड वाइट स्लाइड घूम रही है तुम्हारे आँख के सामने, दूर से कहीं पे कामिनी मैम जैसी कोई आवाज़ सुनाई दे रही है. इट मीन्स दैट यू आर जस्ट हियरिंग एंड यू आर जस्ट लुकिंग, बट यू आर नॉट सीइंग इट विथ कॉन्सेंट्रेशन. दिस ईच एंड एवरी वर्ड ओवर हियर. इसीलिए कहीं पे एलेगरीज तुमने हियर किया था, तुमने लिसन नहीं किया, एंड यू जस्ट हैड अ लुक but you didn't see. So 0.1%, my dear children who were in discipline, they provided me the answer. So once again, in front of all the students who are listening to this video, आज सुना या एक दिन के बाद सुना, it's okay if it's okay with you. सब ये सुनेंगे that this few names that I have mentioned, जो मैंने announce किए, very much like you know the same day itself answer flow हो गए थे उनके. अब वो सही गलत is not important over here. Right or wrong answer is not important. What is important is they were listening to the lecture. They were seeing it carefully and they listened to what I said at the end of the lecture related to allegories, and they provided me the answer instantly. So thank you once again to those all the students. शायद 2-3 के नाम मैंने नहीं भी लिए हैं. Thanks to them also. That Tuesday itself you provided us the answer. Once again, thank you. And so now let's move ahead. Introduction तो हमने दे दिया तुम्हें समझाने वाला. अब let's move ahead with this ancient literature जो अभी भी कंटिन्यू है. तुम्हारे डिटेल आंसर का पार्ट. Verses, that is hymns, shloks, mantras, they were composed in earlier form ऑफ गुजराती लैंग्वेज. यहाँ पे FORM होगा, नॉट फ्रॉम. तो गुजराती लैंग्वेज में भी ये वर्सेस कंपोज होते थे. इन द कोर्स ऑफ टाइम गुजराती लैंग्वेज डेवलप्ड. मैनी अदर लिटरेरी वर्क्स ऑल्सो वर कंपोज इन इट. तो गुजराती लैंग्वेज तो धीरे धीरे डेवलप होने लगी. हेरिटेज ऑफ गुजराती लिटरेचर वॉज मेड प्रॉस्परस, मतलब रिच बन गया हमारा गुजराती लिटरेचर का हेरिटेज by the literary contribution. और इसमें contribution किसका था? Great people like नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम अखो, प्रेमचंद, प्रीतम and others who composed beautiful verses, songs, garba, narrative poems and chappas, etc. After that, the scholars like Narmad, Naval Ram, Keshulal Mashruwala, Pannalal Patel, Umashankar Joshi, Mahipatram, Rupram Nilkant, Govardhan Ram Tripathi and many other such great people have made our Gujarati literature rich through their literary work. Right? So 2 marker, yes. Ancient Indian literature and medieval Indian literature तो पूरा डिटेल आंसर के लिए लर्न करना होगा. बट एज यू लर्न यू विल कम टू नो कि हमने प्रीवियसली जैसे यहाँ पे रामायण महाभारत के ऊपर 2 मार्क का पूछा जा सकता है. तो राइट दिस होल पार्ट, वेदांग वाला, डोंट गिव द हेडिंग वेदांग. वहाँ पे रामायण महाभारत पे पूछा है तो उसे हेडिंग दे दो एंड राइट दिस होल सेक्शन. तो दिस कम्स एज 2 मार्कर. नेक्स्ट और थोड़ा पीछे जाए तो ब्राह्मणिकल लिटरेचर, व्हाट इज आरण्यक, 1 मार्कर. और थोड़ा पीछे की ओर जाए तो मैंने बताया था वेद के ऊपर एक 3 मार्कर पूछा जाएगा. तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद पूरा डिटेल लिख लो. 2 मार्कर के लिए इंडिविजुअल पूछा जा सकता है. 1 मार्कर ऑल्सो कुड बी आस्क्ड फ्रॉम ऑल दिस. और 4 मार्कर एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, तो या वेद से स्टार्ट करना टिल ऑल दिस. तो इन बिटवीन पूछा जाएगा 2 मार्कर, 1 मार्कर ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम टोटल टुगेदर एज 4 मार्कर. राइट. एंड गुजराती लिटरेचर के ऊपर 2 मार्क पूछा जा सकता है. तो दिस होल पैराग्राफ. राइट. नाउ the 4 Dravidian language, 1 marker. Name the 4 Dravidian languages: Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam. They developed their own literature and script that is writing. Out of this, oldest of it is Tamil. Is the oldest of this Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, with its literature belonging to early centuries of the Christian era. According to tradition, very important, learn it perfectly. According to this tradition, रीति रिवाज के अनुसार 3 लिटरेरी गैदरिंग, मतलब पढ़े लिखे लोगों की 3 गैदरिंग हुई, कमिंग टूगेदर ऑफ दिस ग्रेट राइटर्स
and Sangam. Sangam matlab coming together. Were held at which many sages and poets recited their composition. जिन्होंने अपने poems लिखी थी या songs लिखे थे, they all came together at one place और उन्होंने recite किया अपना लिखा हुआ. They contain, अब इसमें लिखा गया था, कई कवियों ने, कई सेजिस ने लिखा था, थीम लिया था पॉलिटिक्स, किसी ने वॉर पे लिखा था, किसी ने लव पे लिखा था. फेमस वर्क ऑफ दिस बॉडी ऑफ लिटरेचर इंक्लूड्स एथुटोकॉय, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ 8 पोएम. तोलाकप्पियम ग्रामर पे लिखा गया था. पट्टू पट्टू दैट इज 10 सॉन्ग्स थे उसमें, 10 सॉन्ग्स. थिरुवल्लुवर रोड द फेमस कुरान विच इन वर्स डील्स विथ मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ एंड रिलीजन. तो हमारे लाइफ के बारे में लिखा गया है, धर्म के बारे में लिखा गया है इन दिस बुक रिटन बाय थिरुवल्लुवर. शिल्पाधिकरम एंड मणिमेखलाई आर सम ऑफ द मोस्ट फेमस एंशिएंट वर्क ऑफ अर्ली तमिल लिटरेचर. तो यहाँ तक हमने देखा दैट वॉज टिल योर फुल स्टॉप, तमिल लिटरेचर फुल स्टॉप तक, एंशिएंट लिटरेचर, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर. नाउ वी मूव अहेड विथ मिडिवल लिटरेचर, अनदर 4 मार्कर. तो हर एक को पार्ट्स में लर्न करोगे, फिर ज्वाइन कर लो पूरा. तो एक एक पार्ट लर्न कर लो, एक दिन में एक पार्ट लर्न कर लो अलॉन्ग विथ योर अदर वर्क. दैट विल बिकम ईजी. मतलब कि सारे ऑब्जेक्टिव लर्न कर लिए 4th चैप्टर के अलॉन्ग विद दैट 1 पार्ट ऑफ 4 मार्कर. दूसरे दिन वो ही सारे ऑब्जेक्टिव्स परफेक्ट कर लो विथ अनदर पार्ट ऑफ दिस 4 मार्कर. फिर कहीं पे तुमने चलो साइंस स्टार्ट कर दिया, फिर 3rd पार्ट ऑफ दिस 4 मार्कर. तो 4 मार्कर को 4-5 पार्ट में डिवाइड कर लो. तो 2-2 मार्कर, 3-3 मार्कर भी उसमें लर्न हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी हो जाएंगे. और पूरा एक संडे आ गया, संडे लर्न कर लो ऑल योर डिफिकल्ट वाले 4 मार्कर, थरो कर लो, लिख लिख के करो. एंड वंस अगेन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू डिवाइड and frame your timetable, how much time to devote to which particular part, free to give me a call. Many students like Suhani and many other students, many students, they gave us a call. And yes, I know कि इतने होशियार बच्चे हैं फिर भी कहीं पे they get confused in between, कहीं पे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा. तो होशियार तो बहुत हैं ये सारे बच्चे मेरे बहुत ही होशियार हैं. द ओनली थिंग इज टाइम वेस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं. ये 6 महीने ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं. कई बच्चों ने उसका बेस्ट यूज किया है, बट आई हैव सीन मेनी पीपल हैव वेस्टेड देयर टाइम अ लॉट एंड पेरेंट्स आर गिविंग अस अ कॉल कि इनको समझाओ. अब समझाने के बाद भी घुमा फिरा के वो वहीं पे आके वापस अटक जाते हैं, बिकॉज इन दिस 6 months they have literally enjoyed. और कई बच्चे ऐसे हैं जैसे आयुषी है, खुशी है, रोल नंबर 105, दैट इज A5, A6. दे आर लिटरली, फिर एक निसर्ग है एंड लॉट मेनी स्टूडेंट्स आई वुड से, हर्षवर्धन, वाला, yes, I always call him Wala, Siddharth Wala, and Vishwa, उसका दोस्त, and उसका दोस्त Ansh, and many students. Some are in contact with okay ma'am, thank you ma'am, लेकिन वो टच में रहते हैं through WhatsApp. Some they continuously give us a call, मतलब कि रोज एक बार कॉल नहीं किया तो ना मुझे चैन ना उनको चैन. दिस इज वॉट आई वॉन्ट, गिव अस अ कॉल. रात को 10 बजे भी ये लड़कियां और लड़के फोन करते हैं डाउट सॉल्व करने के लिए. जस्ट 2 days बैक आयुषी गेव मी अ कॉल एंड शी हैड डाउट्स. गुड, आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई फेल्ट सो हैप्पी दैट थोड़ी और भी हमने बात कर ली. वी एन्जॉय, डाउट सॉल्व हुए, कुछ उसको नहीं समझ में आ रहा था तो वो पैटर्न समझाई. फील फ्री टू कम एंड गिव अस अ कॉल. ये नहीं है कि सिर्फ जिनके कम मार्क्स आते हैं या जो एवरेज है वो ही फ़ोन करते हैं, होशियार बच्चे भी फ़ोन कर लेते हैं तो अच्छा है. डिमांड करते हैं कि मैम ये कुछ एक्स्ट्रा हमें दे दो. एंड देयर केम द फ्लो ऑफ सो मेनी समरीज. येस, कहीं पे इतना वर्कलोड बढ़ जाता है इन बिटवीन दैट. और मैंने इनिशियली समरी दी थी आप लोगों को फर्स्ट फ्लाइट की, 2 चैप्टर की एंड सम
2-3 चैप्टर की और पोएम्स की मैंने समरी सेक्शन पीडीएफ भेजी थी. देन वी प्रोवाइडेड यू नोट्स. तो समरी कहीं पे बाकी के चैप्टर्स की ये वर्क के ओवरलोड में समवेयर आई डेंट प्रोवाइड यू. एंड द रीज़न वॉज ऑल्सो कि वो इनिशियली वो एक हेल्पिंग हैंड दिया था हमने आपको जब नोट्स नहीं मिली थी. बट देन येस वेरी नाइस ऑफ वन ऑफ द चाइल्ड निसर, ही गेव मी अ कॉल एंड ही टोल्ड मी कि मैम, और दूसरा भी एक स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे उसी दिन 2 बच्चों के कॉल आए दैट यू प्रोवाइड अस दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स समरी. And he was so humble, so good, so loving that that child told me, ma'am, don't take pressure, आप बाद में दे देना. So nice of him. I felt so good when he was talking so lovingly. But एक बार मेरे दिमाग में घुस गया कि मुझे बनाना है, मतलब within 20-25 minutes I provided it to all the students instantly. Then I was relaxed. So this is what I want. Come to us. गिव अस अ कॉल. कुछ डिमांड करो हमसे, ये तो ठीक है बैठे रहे. हमने एक छोटी सी डिमांड की, एलिगरी का मीनिंग वही भी नहीं मिला. वो भी टाइम नहीं है बिकॉज यू पीपल आर वेरी बिजी ऑफ कोर्स. बिजी इन प्लेइंग गेम्स, बिजी विथ योर स्मार्टफोन, बिजी विथ योर लैपटॉप, बिजी विथ योर टीवी एंड मूवीज एंड वॉट नॉट. तो भैया थोड़ा टाइम निकालो, पढ़ाई में भी 2-3 घंटे डाल दो, ज़्यादा नहीं. वी आस्क ओनली फॉर 2-3 hours अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल एंड ट्यूशन एंड होमवर्क. जस्ट एक्स्ट्रा 3 hours का इनपुट. आदत हो जाएगी, लेकिन पहले थोड़ा तो कर लो, स्टार्ट तो करो कहीं से, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम मिडिवल लिटरेचर. ऐसे ही कहीं से तो स्टार्ट करना होगा मुझे भी तुम्हारे साथ, राइट? सो ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ मिडिवल एज इन नॉर्थ इंडिया द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर वॉज संस्कृत. Let me tell you one thing I forgot. Not forgot, but I had decided. So actually you can't say I decided. It just came to me and I just announced the name of this student. Now मेरा कोई मोटो नहीं है कि ये बच्चे मेरे लाडले हैं. You all are loving to me. The only thing is some are on their toes. They are alert. They are aware. सो ये उनका हक बनता है कि उनका नाम अनाउंस हो. आई वुड लव टू अनाउंस देयर नेम. द ओनली रीजन इज दे आर वर्किंग हार्ड. और कई बच्चे हैं, येस आई नो, वन ऑफ माई वेरी डियर चाइल्ड, वैसे सब डियर है, वंस अगेन डोंट से दैट आई एम पार्शियल विथ एनी वन, बट बहुत सारे नियर एंड डियर हैं. वन ऑफ 2 of the children who are not talking much to me, but I know they are on their toes. Snehi, Nishka, and many other, Ramani, Manan, मैम करके परेशान करने वाले मेरे बच्चे, and too many students who are on their toes, but they are not conversing with me. They are not giving us a call. वीक में एक कॉल कर दो, आवाज़ सुना दो अपनी, which will give me lots of energy, of course. होप कि इस लेक्चर के बाद तो बच्चे जाग जाएंगे, ठीक है? अच्छा, फ़ोन उठाओ और मेरा नंबर तो पता ही है तुम्हें. बात कर लो कभी 1 मिनट के लिए. आई नॉट टेक योर टाइम, बिजी चिल्ड्रन. तुम्हारा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगी. हल्की थोड़ी सी बात कर लेना मुझसे, आवाज़ सुना देना अपनी. आई वुड बी थैंकफुल टू यू, ठीक है? एंड देन मैं शांत बच्चियों को पता चल गया होगा, आई एम टॉकिंग टू देम. और मेरे नॉटी बॉयज़ को भी पता चल गया होगा किसके बारे में बात कर रही हूँ. सो द ग्रेट वर्क्स वर कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड. दे वर इन संस्कृत. ऑफकोर्स सबसे पहले हमने संस्कृत में लिखना स्टार्ट किया, हमारे ग्रेट वर्क्स कंपोज हुए. इन दिस एज 2 ग्रेट वर्क्स वर रिटन. विच एज? मिडिवल एज. परफेक्टली लर्न करना. मिडिवल एज में कौन कौन से पार्ट्स आएंगे, तो वो 2 मार्कर के लिए भी लर्न कर लेना, तो अपने आप वो 4 मार्कर भी बाद में बन जाएगा, जस्ट लाइक एंशिएंट पीरियड का हमने लर्न किया. इन दिस एज 2 ग्रेट वर्क्स वर रिटन इन कश्मीर. वेरी इंपॉर्टेंट, योर 1 मार्कर. फर्स्ट वॉज सोमदेवस कथा सरिता सागर. सेकेंड वॉज कल्हानाज रात तरंगिनी. These were the first historical books that were written in India and on India, right, related to India. Another famous work of this medieval age was Geet Govind by Jaydev, one of the best poem in Sanskrit literature. one of the मतलब the best नहीं, बहुत सारी अच्छी बुक्स थी, उसमें से ये एक, right?
As we have said before, this was the period when the Upper Brahma language has started developing into modern Indian languages. तो हमारी सारी ancient languages develop होने लगी into modern language. One of the earliest work in an early form, ancient form of Hindi was Prithviraj Raso by Chand Bardai. The work that marks the beginning of Hindi literature. It deals with heroic deeds of Prithviraj Chauhan. Learn it. तो किसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी? चांद बरदाई. और ये बुक हमें बता रही है हमारे बिगनिंग ऑफ हिंदी लिटरेचर, विच टेल्स अस अबाउट द ग्रेट एक्ट्स एंड डीड्स बाय पृथ्वीराज चौहान. इन दिस टाइम संस्कृत लिटरेचर मेड ग्रेट स्ट्राइड, दैट इज प्रोग्रेस इन साउथ इंडिया. तो साउथ इंडिया में संस्कृत एक्सेप्ट किया गया, उसमें भी संस्कृत लिटरेचर ने तो बहुत प्रोग्रेस किया साउदर्न इंडिया में. फॉर सम टाइम जैनिज्म धर्म ने इन्फ्लुएंस किया कन्नड़ लिटरेचर को. Very important learn. Poet Pampa composed Adi Puran, Vikram Arjun Vijayan. Poet Ponna wrote Shanti Puran, describing the life of 16 Jain Tirthankar. Poet Ranna, he composed 2 books, Ajitnath Puran and Gadayudh. Poets namely Pampa, Ponna and Ranna are known as, learn it, trio of early Kannada literature. Poet Kamban wrote Ramayana in Tamil language. Apart from this, other famous literature or the literary or the written works in literature they were all written in Tamil language. So this is medieval literature when it comes to 4 Dravidian language. Development of Indian languages and composition got promotion in Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत मतलब कि इस किंगडम में सल्तनत के टाइम पे इंडियन लैंग्वेजेस को एक प्रमोशन मिला, मतलब बूस्टअप मिला इन दिल्ली सल्तनत राजाओं के टाइम पे. 2 forms of Delhi language were Khadi Boli and Brijbhash. Began to be used for writing literature. तो इनिशियली लोगों ने खादी बोली और ब्रिज भाषा में लिखना शुरू किया था दिल्ली में. ये 2 दिल्ली की लैंग्वेजेस थी. Many devotional song मतलब religious song were composed in this language, that is in Khadi and Brij. Many heroic poems and stories also were composed in Rajasthani language, which is similar to Hindi and Gujarati. अब देखो लिखा गया था स्क्रिप्ट आज तक, जैसे कि इंग्लिश में हम कहते हैं अल्फ़ाबेट डेवलप हुए ABCD, गुजराती में क ख ग, मराठी में, हिंदी में, संस्कृत में अल्फ़ाबेट डेवलप हुए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, बहुत सारे लैंग्वेजेस डेवलप हुए, राइटिंग वर्क डेवलप हुए क्योंकि उनके अल्फ़ाबेट्स थे. एक ऐसी भाषा, 2 ऐसी भाषाएं हैं जो बोली जाती है, उसमें पोएम्स कंपोज होगी, बोलना होता है, लिखाई नहीं होती, उनके अल्फ़ाबेट्स नहीं बने आज तक. वन इज आदिवासी का और दूसरा है राजस्थानी. वो बोलते हैं लेकिन उनकी स्क्रिप्ट नहीं है, अल्फ़ाबेट्स डेवलप नहीं हुए. सो इफ दे हैव टू राइट देयर बोली, उनका जो बोलना है राजस्थानी यों का जो बोल, उनकी अलग बोली होती है, अगर लिखना है दे पिक अप एनी अदर लैंग्वेज अल्फ़ाबेट. एंड इस व्हेन यू स्पीक इट इज़ मोर और लेस सिमिलर टू हिंदी एंड गुजराती. Heroic works like Ala, Udal, Visaldev Raso were popular at that time. A book called Chandrayan was written by Mulla Daud. Is the oldest book in Awadhi language. अब ये सबसे oldest पुरानी बुक थी in Awadhi language. However, critical appreciation was always in Sanskrit. अब हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था क्रिटिकल अप्रिसिएशन, मतलब क्रिटिसाइज करना लेकिन पॉजिटिवली, मतलब अप्रिशिएट करना. कई बार क्रिटिकली हम उसको डेप्रिशिएट भी करते हैं, मतलब डाउन लेके आते हैं. तो अप्रिशिएट मतलब वाह वाह, डेप्रिशिएट मतलब बुराई करना. तो अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ खराब है, जैसे मूवीज अच्छी नहीं है, तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं नेगेटिवली. सो क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ दिस एंशिएंट बुक्स वाज ऑलवेज डन इन ओनली वन लैंग्वेज. मतलब कोई भी लैंग्वेज में बुक्स लिखी गई हो, लेकिन अगर उसको क्रिटिसाइज करना था, दैट इज अप्रिशिएट करना था, तो संस्कृत में अप्रिशिएट करते. पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत. लर्न इट. रिजल्ट क्या हुआ? कॉन्सिक्वेंटली, दैट इज रिजल्टेंटली, मैनी पर्शियन वर्ड्स आर सीन इन इंडियन लैंग्वेजेस. मैनी हिस्टोरियंस इमर्ज्ड आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड. वी गेट प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री थ्रू टर्किश राइटर इन पर्शियन लैंग्वेज. तो बहुत सारे हिस्टोरियंस इस मिडिवल पीरियड में हमें दिखाई दिए, उन्होंने अपना वर्क प्रेजेंट किया
और Ziauddin Barani wrote Tariq Firoz Shahi, learn it, which gives us detailed information about the region, area of Khilji and Tughlaq king. He also wrote a book on political theory called Fatwa-e-Jahangiri. Most outstanding literary figure of this period was Amir Khusro. 2-marker whole paragraph on Amir Khusro. Learn it. Short note. He was a poet, historian, mystic, saint and composer of music. He was also a disciple of Nizamuddin Aulia. The Aulia 1-marker also. That who was the disciple of Nizamuddin Aulia? Amir Khusro. या आमिर खुसरो के मेंटर या गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया. Amir Khusro wrote Ashiqain, Nuh, Sifir, Qiratul Sadaya, Khazaiul Fatah and several other works of poetry. He was very proud of his being an Indian and he praised India as heaven on earth, that is earthly paradise. He praised India's flowers, animals, that is flora and fauna, its beauty, buildings, knowledge of India, learning in India. He strongly believed that in many respects the essence of Hinduism resemble Islam. मतलब हिंदुइज्म बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है तो इस्लामिक रिलीजन. ही कंसिडर्ड हिंदवी, इट इज हिंदवी नॉट हिंदवली, तो रिमूव एल. ही कंसिडर्ड हिंदवी द हिंदी स्पोकन अराउंड द रीजन ऑफ दिल्ली एज हिज मदर टंग. ही कंपोज मैनी वर्सेज इन हिंदी. ही कंपोज वर्सेज इन मैनी लैंग्वेजेस. ही रोट अ नंबर ऑफ बायलिंगुअल क्वाट्रिन, मतलब 2 लैंग्वेज में लिखते थे वो. वर्सेस भी लिखते थे इन हिंदी एंड पर्शियन. तो 2 लैंग्वेज कौन सी थी जिसमें वो लिखते थे? दैट इज हिंदी एंड पर्शियन. हेल्दी ट्रेडिशन स्टार्टेड बाय हिम continued for many centuries after him. Even today people remember him. The regional kings, छोटे छोटे एरिया के जो राजा थे, gave a great boost up, inspiration, motivation या impetus टू द रीजनल, उनके रीजन की भाषा को और लिटरेचर को उन्होंने बूस्टअप किया. भक्ति सेंट प्रीच इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल. अब जो भक्ति सेंट थे, मतलब जो भजन कीर्तन जो गाते थे और वो जो साधु पुरुष थे वो प्रीच करते थे कॉमन लोगों को, कॉमन अपनी भाषा में. मैनी ऑफ देम लाइक कबीर व ग्रेट पोएट्स. भोजपुरी, अवधी व द मेजर डायलेक्ट्स ड्यूरिंग दोज डेज. जैसे हम बोलते हैं मेन हिंदी भाषा, फिर उसके अलग अलग सब पार्ट्स होते हैं. भोजपुरी, अवधी, जैसे गुजराती, फिर उसकी सब पार्ट्स होंगे, डायलेक्ट्स होंगे, काठियावाड़ी, सुरती. द वर्क्स ऑफ कबीर आर चीफली कंपोज इन साधुखड़ी. अमंग देम कबीर दोहास became a part of folklore. Malik Muhammad Jaisi wrote Padmavat in Awadhi. There are many other poets of Awadhi in this period. Moreover, well-known Ramcharitmanas written by Tulsidas was written in Awadhi language. There were many other writers of Awadhi language. Besides Hindi language, literature in other languages also developed. In Bengali also people wrote many books. Ramayana by Kritwas was written in Bengali. Hundreds of lyrics by famous poet Chandidas were written under the patronage of the rulers. Patronage मतलब राजा महाराजा उस ज़माने में पेट्रोनाइज करते थे, मतलब कि पैसे से, रॉ मटेरियल से मदद करते थे, एक जगह प्रोवाइड करते थे इन राइटर्स को शांति से बैठ के लिखने के लिए. तो ये सारे लोग राजा पेट्रोनाइज करते उनको. With Saint Chaitanya, learn it, very important. Tradition of writing devotional song began. भजन कीर्तन, भगवान के ऊपर जो सॉन्ग्स बनते थे धर्म के रिलेटेड, वो चैतन्य महाप्रभु ने स्टार्ट किया था डिवोशनल सॉन्ग लिखना. नरसिंह मेहता wrote devotional song in Gujarati, Namdev and Saint Eknath in Marathi, and there were important development in Kashmir also under Zainul Abidin, under whose patronage many Sanskrit works like Mahabharata, Raat Tarangini were translated into Persian. During the rule of kings of Vijayanagar, Sanskrit literature continued to develop. तो विजयनगर के जो राजा महाराजा थे उनके ज़माने में, टाइम पीरियड में, रूलिंग टाइम पीरियड में संस्कृत लिटरेचर बहुत डेवलप हुआ. However, this was an important period for the growth of Telugu literature also. ये साउथ का रीजन है विजयनगर. Raja Krishnadev Rai, the great king of Vijayanagar, was also a Telugu and Sanskrit writer. Learn it, he wrote Amukta Malayat.
As in art and architecture, of course, Mughal period also saw great development in literature. Very important. Babur, learn it. Very, very important for one marker. Babur, first Mughal ruler, was one of the starter, pioneer of Turkish poetry. Turkish poetry को start करने वाले कौन थे? Babur was the first Mughal ruler. And he was also the author of a very valuable autobiography, खुद के बारे में लिखना, Tuzuke Babur in Turkish, which was later translated into Persian and the name given was Baburnama. Gulbadan Begum, sister of Emperor Humayun, wrote Humayunama. Jahangir wrote his great autobiography, Tuzuke Jahangir. Aurangzeb also was a great writer. Last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar was a notable Urdu poet. The first Mughal emperor Babur. He wrote Tuzuke Babur in Turkish. Later on translated into Persian, name given was Baburnama. हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने बुक लिखी थी हुमायूंनामा. जहांगीर ने ऑटोबायोग्राफी लिखी खुद के ऊपर, जैसे उसे कहते हैं तुजुके जहांगीर. औरंगजेब ग्रेट राइटर. लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर ऑल्सो ग्रेट उर्दू पोएट. Hindi literature made great progress during Akbar's rule. Very important learn. Tulsidas and Surdas wrote in this period. Great poet Keshav also wrote on love and separation. Rahim Dohas also became popular all over the country. Many noteworthy books were written during this period. Abdul Fazl wrote Ain-e-Akbari and Akbarnama, all your 1 marker, plus 4 marker detailed answer. Ain-e-Akbari gives detail about Indian riti rivaj, mannerism, dharm ke bare mein, philosophy, economic condition that is related to business and almost every part of our life के बारे में, Indian के बारे में लिखा गया था in Ain-e-Akbari. As a historical book, it is unparalleled book. फिर अबुल फजल के भाई फैजी बहुत बड़े पर्शियन पोएट थे. He translated many Sanskrit works into Persian. Akbar had established independent department to translate the Sanskrit books like महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भगवद गीता, पंचतंत्र. तो अकबर ने बहुत सारे सपोर्ट दिया था लोगों को, एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया था फॉर ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत वर्क. ये सारी बुक जो संस्कृत में लिखी गई थी उन्होंने ट्रांसलेट करवाई थी. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस मिडिल पीरियड was the birth of Urdu language, very important. This new language soon developed into one of the richest modern Indian languages. Again, learn it. It produced great poets like Wali, Mirdad, Mir Taqi, Nazi Akbarabadi, Abdullah Khan, Ghalib, Iqbal, others. Learn it. Urdu prose also developed in the early 18th century when the translation of most of the historical work from Sanskrit to Urdu began. तो अर्ली 18th सेंचुरी में उर्दू प्रोज तो बहुत डेवलप हुआ व्हेन ट्रांसलेशन मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल बुक फ्रॉम संस्कृत टू उर्दू स्टार्टेड. तो 18th सेंचुरी स्टार्टिंग, दैट इज 1700, वेरी इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम ओरिजिनल प्रोज वर्क इन उर्दू वॉज रिटन. फिर पहले तो ट्रांसलेशन होने लगा, राइट, संस्कृत टू उर्दू. फिर ओरिजिनली उर्दू में ही बहुत सारी बुक्स लिखी गई. Muhammad Hussain Azad Darbar-e-Akbari is one of the best works of Urdu language. So till then for today, I hope so there's more than enough for you to digest. Repeat करते रहो those chapters which you find it of course difficult. But yes, up till last year I used to always say for 10th standard, of course 9th standard too, but 10th standard from board point of view, कि फरवरी तक हर एक चैप्टर इंग्लिश, एसएस, साइंस का रीडिंग वर्क वर्ड टू वर्ड फ्रॉम टेक्स्ट बुक विथ कंसंट्रेशन थरली मिनिमम 10 टाइम्स तो रीड करना होगा. तो एडिट द एरर इजी हो जाएगा. मैं बताऊंगी एडिट द एरर, ग्रामर का अभी और भी लेक्चर्स बाकी है हमारे, तो इन वन ऑफ इट आई डू एडिट द एरर. बट यस, एडिट द एरर में सिखाना actually is not there, is something like I have to just tell you how it is to be done. तो अभी एक हिंट दे देती हूँ कि इंग्लिश के बुक्स, ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम बोथ द बुक्स इतना थरली रीड हुआ होना चाहिए बाय फरवरी कि तुम्हें पता ही चल जाएगा कि यहाँ पे मिस्टेक आई हुई है. तो एक रॉन्ग वर्ड है, वो एरर रेक्टिफाई करना है तुम्हें.
रॉन्ग वर्ड निकाल के राइट वर्ड डालना है. जैसे ऑफ दिया है, था इन, तो राइट इन. सो दिस इज हाउ you should know the base of the grammar should be perfect, past, present, future, everything. And other के टेक्स्ट बुक रीड एसएस में 16 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव 16 on 16 स्कोर कर लिए, बाकी के इजी बन जाएगा स्कोर करना. तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट टेक्सचुअल रीडिंग थरली, टेक्स्ट बुक के हर एक चैप्टर के बाद की एक्सरसाइज थरो परफेक्ट करो, then move on to your notes, right? So till then, hope to receive calls from many of you. Doubts है ना हो, आवाज़ सुना देना अपनी, ठीक है? एटलीस्ट एनर्जी हमारी मेरी बढ़ जाएगी तुम्हारी आवाज़ सुन के, राइट? सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड आई होप यू कैन बी दैट सेल्फिश कि alternate days सिर्फ हमारी आवाज़ सुनो. The other side, you don't talk with me every alternate day, but at least once a week, let's talk. 1 minute at least. That is 60 seconds. We will enjoy. ठीक है? So thank you so much once again. Have a good day. Bye. Thank you.